Assalamu alaikum students. Here's Mrs. Wahida Sajjad with your new video of helping video of holiday homework. It's about page number 5 to 8. Students, I think the previous video has helped you a lot. So I'm here with the next video. Let's start from page number 5. It's about the first question, write meanings of the following words. Shaggy, I have done it long and untidy here. These words are available in your textbook's vocabulary. Please search out at the end of each chapter, there is vocabulary and you can find these words and meanings there. Just like in your chapter number 1, last chapter, in your last chapter, and so and so. I'm just giving you some meanings, just like mushrooming, it means growing, crutches, sports, downy, सॉफ्ट एंड फीदरी यानी बहुत हल्का सा जो एक होता ना बिल्कुल ही बेवज़न किस्म की जो रुई के गाले की तरह से या पर की तरह से हल्का. Now come to the next question. It is also on the page number 5. That is, replace each of the following underlined adjective phrases by an adjective. अब adjective, what's an adjective? Quality of a thing, of a person, of a place. An adjective phrase means a group of words that does the work of an objective. Just like that, read out the first one. He wore a turban made of silk. Made of silk, it is an adjective phrase. It is a group of words that acts like an adjective. We will convert it in adjective just like he wore a silk turban. Is it clear? Second one is he's a man without a friend. We may say he's a friendless man. Number 3, nobody likes a person with bad tempered. Nobody likes bad-tempered person. Is it clear? Next one is, it is of no use. It is useless. These are quite easy things. You may also check it on your page number 87 of your textbook. Last one is, he's a man of sense. He's a sensible man. Now come to the other question, that is, replace each of the following underlined adverbs by an adverb phrase. Now come to page number 86 of your textbook. Here's the definition of adverb and adverb phrases is given. Adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb. यानी एक ऐसा group of words जो कि adverb की जगह काम कर रहा हो, that is called adverb phrase. Just like the pigeon flies swiftly. Swiftly is an adverb. We may change it, the pigeon flies with a great speed. With a great speed acts like an adverb. Number 2, he built his own house there. He built his own house on that spot or on that place. He tried hard. You may say he tried too much. He tried so much. Number 4, he spoke eloquently. He spoke with fluency. Did Sarah behave well? Did Sarah behave in good manner? यानी जब एक वर्ड होता है, that is called an adverb. Adverb क्या होता है? That explains an verb. A verb, sorry, and नहीं, a verb that explains a verb
कि वर्ब जो है जो वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। और जब हम एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स में उस क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं और वो एडवर्ब की जगह काम कर रही होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। आई थिंक it should be clear to you people. Now come to page number 6. Translate the following paragraphs into Urdu. You should know the meanings of a bit difficult words, then the translation will be quite easy. Here, health is wealth, सेहत एक दौलत है. As long as a man remains healthy, he doesn't realize the value and importance of his health. कि जब तक एक इंसान सेहतमंद रहता है, वो रियलाइज़ नहीं करता, एहसास नहीं करता सेहत की अहमियत और वैल्यू का, यानी कदर का. As he falls ill, the importance of health is known to him. एक चीज़ जहन में रख लें, you should translate in बामुहावरा उर्दू, not word to word. बामुहावरा उर्दू मीन्स कि पूरा आप सेंटेंस पढ़ें, फिर उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें. ऐसे नहीं तोड़ तोड़ के नहीं करना कि जैसे इसमें लिखा हुआ है एज ही फॉल्स इल, जैसे वो बीमार होता है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इज़ नोन टू हिम, उसको अहमियत जो सेहत की है उसके सामने आ जाती है. या आप इस तरह से नहीं करें, आप लिखें जैसे वो बीमार होता है तो उसे सेहत की अहमियत का एहसास हो जाता है. अ हेल्दी मैन एन्जॉयज ईटिंग, अ मैन विद ब्रोकन हेल्थ कमज़ोर सेहत, एन्जॉयज नथिंग. अ सिक मैन इज़ बरीड अलाइव मीन वो जो बीमार है वो तो ज़िंदा दफन हो जाता है, यानी उसके लिए ज़िंदगी में कोई रौनक बाकी नहीं रहती. बरीड अलाइव मीन ज़िंदा दफन हो जाना. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. प्रिवेंशन परहेज़ इज़ बेटर दैन क्योर, इलाज. क्योर मीन इलाज. नाउ कम टू द सेकेंड वन, क्रैमिंग होता है रट्टा लगाना, बस ज़ुबानी समझे बगैर जो है वो उसको पढ़े जाना. इज़ अ डिज़ीज़, माइंड इट इज़ अ डिज़ीज़, कि ये एक बीमारी है. इट डजंट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स. कॉन्फिडेंस एतमाद. दे डू नॉट लर्न क्रिएटिविटी मीन्स तख्लीकी सलाहियत, खुद से कुछ करना. व्हेन वंस एनीवन इंडल्ज, जब कोई इसमें मुब्तला हो जाता है या इस तकलीफ़ में, इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है या इस आदत को इख्तियार कर लेता है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट रिड ऑफ इट. गेट रिड मीन्स निजात हासिल करना. It is the duty of the teachers that they should create confidence among the students at the initial stage, ibtadai, and they should encourage the students, encourage mean hausla afzai, who have the ability of self-creativity. Such students, having grown into age, become good writer. They do not follow others blindly, andhadhund, bagair soche samjhe. I think it is clear. Now it is the turn of page number 7. Here it is. Write a letter to your friend requesting him or her to make his or her spring holidays with you. You may write it easily. You are enjoying your holidays. These are summer holidays. You have to write about spring holidays. Just आपको invite करना है. लेटर आप लोग क्लास 6 से हम आपको करवा रहे हैं, पैटर्न आपके पास है, आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखें. लेटर की बॉडी पे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दें. फर्स्ट जो उसकी 2-3 लाइंस लिखें, हाल अहवाल पूछ लें, अपना बता दें. नेक्स्ट अलग पैराग्राफ में लिखें कि स्प्रिंग हॉलीडेज़ आर अप्रोचिंग और आप चाह रहे हैं कि आपकी या आपका दोस्त आपके साथ ये छुट्टियां गुजारे, तो इनवाइट करें उसे अपने घर पे. थोड़ा बताएं कि हाँ तुम लाहौर में आओगे तो हम इस तरह से इंजॉय करेंगे, सैर करेंगे, जो भी आप लिखना चाहें. फिर एक तीसरे पैराग्राफ में आप
उसका जो भी उसके घर वालों को सलाम देना चाह रहे हैं, जो भी खैरियत दरियाफ्त करना चाह रहे हैं, गुड बाय कहना चाह रहे हैं, वो लिखें। लास्ट में आप लिखेंगे योर सिंसेरली, योर फ्रेंड, जो भी आप लिखना चाहते हैं, और फिर उसके बाद अपना नाम लिख के, या आप क्लास 9th में हैं, यू मे राइट XYZ ओनली, डेट लिखें और एंड कर दें। Now come to the last page, means today's last page, page number 8. Write a dialogue between two friends discussing about importance of English language. Students, dialogue सिर्फ ये नहीं होता हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, और दूसरा के आई एम आल्सो फाइन, और उसके बाद जो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आप बस इसको थोड़े से एक आध लाइन में इसको कंप्लीट करें, एक सिचुएशन क्रिएट करें। डायलॉग ऐसे नहीं होता जस्ट लाइक दैट कि दे आर टू फ्रेंड्स, दे मेट ईच अदर इन अ स्ट्रीट, और या कोई एक दोस्त दूसरे के घर जाता है, वहाँ पे वो बात करता है, या वो स्ट्रीट में ही खड़े होकर बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर स्टडीज़, तो फिर वो इस बात पे कि इंग्लिश जो है दैट इज़ द मीन्स ऑफ एजुकेशन, और इंग्लिश अगर किसी को मुश्किल लग रही है तो उसको समझाना है कि इम्पॉर्टेंस बहुत है इसकी, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और आगे हमारे स्टडीज़ में इट हेल्प्स अस लॉट। तो थोड़ी सी बातें, ऐसी बामानी बातें, मीनिंगफुल बातें डायलॉग में लिखनी है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक को पूरा वो कवर कर लें बातें। सिर्फ ये नहीं हाउ आर यू और गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, दैट इज़ नॉट इनफ। ठीक है, यू आर इन प्रैक्टिस, देर आर सम डायलॉग्स इन योर ग्रामर बुक आल्सो, पढ़ें उनको। एक चीज़ स्टूडेंट्स, आई वांट टू से ऑल ऑफ यू दैट्स के आप लोग आजकल घर पे हैं, थोड़ा सा अपनी बुक्स से हट के मुताले की आदत डालें, रीडिंग हैबिट अडॉप्ट करें, ताकि आपके पास आपका वर्ड बैंक ज़्यादा हो, आपको सेंटेंसेस लिखने आए। देखिए, रीडिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी। जैसे कि आप लिसनिंग करते हैं, देन रीडिंग करते हैं, और फिर आप जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ आ सकते हैं। तो लिसनिंग जो है, अब इस वक्त तो स्कूल में वी ट्राई आवर हार्ट के आप लोगों को हम स्पोकन इंग्लिश की तरफ लाएं। टीचर्स आर डूइंग देयर बेस्ट दैट दे डिलीवर देयर लेक्चर इन इंग्लिश and they communicate you in English so that you may understand it quite easily. So as you are at your homes now, try to adopt the habit of reading. छोटी छोटी सी कहानियाँ, कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स नहीं, छोटी छोटी सी कहानियाँ पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ लें, इंग्लिश न्यूज़पेपर एक लें पूरे वीक में, उसको थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे पढ़ते रहें। It will help you a lot. I think it is enough for the day. I will come to you with another video that will be of page number 9 to 12. These are the last pages of holiday homework, and I hope that this video will help you, inshallah, in doing your holiday homework. Allah Hafiz.